Namaskar, Adab, Sat Sri Akal and Jai Hind. Welcome to my YouTube channel Explained Before You. I hope all my dear children are in good health. This is my first YouTube video and I will be making educational content. This video is more important for parents rather than children because they deserve to know what I am going to offer to their children. I will cover this video in 5 sections. First, I will tell you who am I. Second, why I have opened this YouTube channel. Third, what will I teach. Fourth, my motto or my vision. Fifth, my first topic जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. So stay tuned. First of all, I would like to introduce myself. My name is Pankaj Kumar, basically from Bihar, born and brought up in Bokaro Steel City, Jharkhand. I was from very poor background, but with my dedication and hard work, I joined Indian Navy by clearing exam in one go. I served my motherland as a naval soldier for 15 years. After that, I joined Public Sector Bank, where I am currently working in. Here also, I cleared banking exam in one single go. By virtue of my work, I got settled at Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. I know and understand Bhojpuri, Hindi, English, Telugu, and somewhat Bengali. My native place is still at Bihar, and my parents are residing at Kolkata. So, I belong to India as I am an Indian soldier. So, second is why I have opened this YouTube channel. There are many reasons behind this. The very first reason is I love teaching. As I mentioned that the financial condition of my house was not so good. So during my school days I used to teach maths to my fellow classmates and juniors also, and they used to pay me as they were very much satisfied by my concept clearing. I really enjoyed teaching them. Next reason why I opened this YouTube channel is at present, many children are lagging behind, especially in maths, because the concepts being provided at school level are not up to the mark. My daughter is studying in standard 6th. Many times she come to me with very simple doubts. And when I teach her, she tells me, wow, that was so easy. This is also one reason why I picked to teach on YouTube. By the way, my daughter is topper of her class. But why I am telling this, because I came across many parents telling me स्कूल में तो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होता है. अरे हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ टीचर्स कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं. या फिर आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ का पढ़ाई कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब आपके साथ भी होता होगा, बिकॉज मैं पेरेंट्स से अभी बात कर रहा हूँ. तो अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आप भी पूछते होंगे और आपसे भी काफ़ी सारे पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे ये सारी बातें. द थर्ड रीज़न व्हाई आई ओपनड this YouTube channel to make quality education accessible to the underprivileged children of the society for free. Now, what will I teach you? I will basically cover all maths related NCERT subject wise syllabus from standard 6th to standard 10th. So, why I choose standard 6th? Because my daughter is studying in standard 6th. So, I will be very honest when I will be teaching, because at the time I am teaching you, I will be teaching to my daughter also. So, definitely I will give my 100%. Also, standard 6th to 10th is basic foundation for higher studies. For making a building, we need to build foundation first. So, if foundation is strong, then building is quite strong and it lasts long. Similarly, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, स्टैंडर्ड 6th से स्टैंडर्ड 10th तक का अगर आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा, तो आप हायर स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो और लाइफ में अच्छे से सेटल हो सकते हो. तो नाउ आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 6th to 10th. Later on, I will be covering for competitive exams also. Mostly I will cover maths. Then question and answer sessions, chapter wise and topic wise will be covered. Summary of same topic from various authors.
मतलब आपको पूरा संपूर्ण निचोड़ मिलने वाला है यहाँ पर। आपका एनसीईआरटी बुक्स का जो कंटेंट है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में आप दूसरे ऑथर्स का जो कंटेंट है वो भी समराइज़ करके मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। बिकॉज मेरा पूरा जो प्राइमरी फोकस इज़ ऑन कंसेप्ट्स। यहीं पर आजकल प्रॉब्लम है, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ्स में, तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो, और यहीं पर से आपको बाद में फिर दिक्कत आता है। I will also give practical examples from daily life to make your study more enjoyable. और उसके साथ साथ I will give problem solving tricks and techniques. I will also conduct live doubt sessions as in when required. My motto or vision. What is my motto behind this? To give free and quality education. Society has given us many things. I feel it's my responsibility to give something back to the society by sharing my knowledge and wisdom. I promise to give my level best to add some value to your math subject. So, my first topic is very interesting, that is BODMAS. BODMAS rule. It's a very important topic. As I told you that I'll be basically concentrating on boosting up your concepts, because आज सबसे प्रॉब्लम बच्चों में concepts का ही है, क्योंकि उनका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, बाद में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो ये फाउंडेशन है मैथ्स का, जिसको बोलते हैं BODMAS। ये अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ किसी भी, not only in maths, in other subjects also, this rule comes in play. So it's a golden rule for simplification. So after this topic, after studying BODMAS from here, you will be filled up with confidence, and you will be able to solve all the simplification problems. BODMAS acts like a superhero in your entire journey of maths. अब ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा, हिंदी में पढ़ाऊँगा, मोस्टली हिंदी ही में ही पढ़ाऊँगा, बट इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया। सो BODMAS एक सुपर हीरो की तरह एक्ट करता है, जैसे कि तुम्हारे फादर हो सकते हैं। सब किसी के फादर एक तरह से सुपर हीरो होते हैं। क्यों सुपर हीरो होते हैं फादर? क्योंकि वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, हमेशा अच्छा गाइडेंस देते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। कभी भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो अपने फादर को कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको सही गाइडेंस देते हैं। तो BODMAS भी एक तरह का मैथ्स का पूरा प्रोसीजर, पूरा सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर्स के लिए सुपर हीरो जैसा काम करता है। अगर आप BODMAS का नियम सही से जानते हो और आप सही से कर सकते हो, तो आपका कोई भी सिंप्लीफिकेशन एरर नहीं होगा, और सारा मैथ्स तो एक तरह से सिंप्लीफिकेशन ही है। What does BODMAS do? It tells us orders of operation. कोई भी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को कैसे करना है, उसका ऑर्डर्स को ये बताता है। Now, why BODMAS? Suppose I'll give you one example. Suppose 2 plus 3 multiplied by 4. 2 plus 3 multiplied by 4. I have taken one example. 2 plus 3 multiplied by 4. So now just you solve this question. और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैंने बताया कि 6th to 10th के लिए मैथ्स पढ़ाऊँगा, बट ये जो टॉपिक है इट्स अ कॉमन टॉपिक, और इसमें मैं जूनियर लेवल से लेकर पूरा हायर लेवल तक बताऊँगा इस BODMAS को। तो ये जो टॉपिक है स्पेशली, ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में है या सेकेंडरी स्कूल्स में है या हायर स्टडीज़ में है,
उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको बॉडमास का पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। सो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है 2+3 × 4। सो आप इसको आंसर्स लेने के लिए दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। कोई एक बच्चा बोल सकता है कि पहले मैं 2+3 कर दिया 5 × 4, पहले 2+3 करके 5 आया, ×4 इट कम्स टू 20। और दूसरा एक बच्चा है, उसने क्या किया, उसको बॉड मास मालूम था, उसने क्या किया, पहले 3 × 4 किया, तो ये कितना आया, 2+4 × 3 = 12, that is equals to 14. So which is the correct answer? So this is wrong and this is right. Why? Because here BODMAS rule has been applied. Now here comes why BODMAS is important, why BODMAS rule is important. Because suppose there are two children, there are two friends, one is from India and one is from America. Both are solving one problem. Suppose this one, 2+3 × 4. So the friend who is in America should also get the same answer, and the person in India should also get the same answer. If they individually solves this problem, they will get different answers. So that is why BODMAS has been introduced and it's being followed worldwide. BODMAS rule is used everywhere, let it be basic arithmetic of class 6 or algebra of class 10. Now BODMAS में क्या क्या है, BODMAS में BODMAS, अब ये सारे क्या है, what does this mean? B stands for bracket, B stands for bracket, O stands for off or orders. Now what does orders means? Orders का मतलब क्या है, exponents, powers, roots. इसको ऑर्डर्स बोलते हैं. D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S means subtraction. अब एक एक करके 1 by 1 आपको सारा बताएंगे. और फर्स्ट आई विल टेक ब्रैकेट्स. तो सबने सुना है ब्रैकेट्स के होता है, बट ब्रैकेट्स के 4 तरीके के हो सकते हैं. ब्रैकेट्स 4 टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट इज, दिस इज कॉल्ड बार और वर्नाकुलम ब्रैकेट. बार और वर्नाकुलम ब्रैकेट, बार और वर्नाकुलम ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर इसको लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट. एग्जाम्पल लेते हैं, -5 + 7, -5 + 7, और इसके ऊपर बार है, ठीक है. और एक एग्जाम्पल सेम है, -5 + 7, इसके ऊपर बार है, बट यहाँ पर बार ओनली नंबर्स के यहाँ से शुरू हो रहा है, 5 का ऊपर से शुरू हो रहा है, एंड यहाँ पर इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम साइन, जहाँ माइनस साइन के ऊपर से ये बार स्टार्ट हो रहा है. तो अभी इसको सॉल्व करने से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सिंपली हमको इसे सॉल्व करना है, तो जहाँ से लाइन स्टार्ट होता है, जहाँ से बार स्टार्ट होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं पहले. तो यहाँ पर 5 + 7 कितना होगा, 12, 7 × 5 = 12, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा. तो इसका ये आंसर होगा. लेकिन इस केस में
यहाँ पर साइन के साथ में आया है, बार यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सो -5 and +7 will come together, so -5 + 7 will be +2, so that you have to be very careful while if you observe bar or line bracket, or this is also called vernaculum. So second one is small bracket, this is called small bracket. Third is curly bracket, curly bracket. Fourth one is square bracket, square, or you can say big bracket also. सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है जो नोट करने वाला ये है कि जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बॉडमास में सबसे ऊपर में ब्रैकेट आता है ना, तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का जो सारा ऑपरेशंस है पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जाते हैं। जब भी हमको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, कोई भी सिंप्लीफिकेशन में अगर मल्टीपल साइंस है तो आपको ये टॉप टू बॉटम को फॉलो करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को क्लियर करना है, सेकंड दूसरा ऑफ ऑर्डर्स या एक्सपोनेंट्स, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी इज डिवीज़न, डिवीज़न इज नॉर्मल डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, then addition, then subtraction. So in this order you have to simplify. अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि जिसको बॉडमास मालूम है वो भी गलती कर सकता है। बॉडमास के हिसाब से पहले हमको क्या सॉल्व करना, ब्रैकेट वाला पोर्शन को सॉल्व करना। तो ये ब्रैकेट पोर्शन है, इसको पहले सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसने क्या किया, 3 × 2 करेंगे, अंदर में 3 × 2 = 6 -8, बाहर में 2 × सो इट इज़ 8 × 2 = 16 -6, इट इज़ कमिंग टू 10। और एक बंदा क्या किया, उसको भी बॉडमास मालूम है, उसने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 × 8 - 3 × 2 = 6, 8 - 6, पहले इसको सॉल्व किया, देन 2 × 8 - 6 इज 2, then 2 × 2 = 4. Which one is correct? This one is correct. और ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडमास ब्रैकेट के अंदर का जितने भी ऑपरेशंस हैं, ब्रैकेट के अंदर का सारा ऑपरेशंस होने के बाद ही ब्रैकेट को ओपन करना है। अभी इसने यहाँ पर क्या किया, इसने एक ऑपरेशन ख़त्म करके ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो फिर इसका आंसर रॉन्ग आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट का पूरा ऑपरेशंस ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पर 8 - 6 के बाद 2 कुछ भी नहीं, ब्रैकेट के अंदर ओनली 2 है, देन वी हैव टेकन आउट फ्रॉम ब्रैकेट, तब जाके ये 4 आया। एक क्वेश्चन है 100 / 4 / 5 / 2, ठीक है, दिस इज वन। सेकेंड इज 100 / 4 / 5 / 2, and one more 100 / 4 / 5 / 2, these two are in bracket. अब देखने से तो क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ ब्रैकेट का पोजिशनिंग इज एट डिफरेंट प्लेसेस, सो द आंसर्स विल बी डिफरेंट। इन दिस केस 100 / 4 / 5 / 2, तो हमको मालूम है कि जब डिवीज़न होता है तो
ये पोर्शन मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट हो जाता है। जब ये 100, ये फ्रैक्शन में आपको सिखाएंगे, 100 ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/4 हो जाएगा, बिकॉज इट्स 4 इज 4/1, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स एक्सचेंज। जब फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के लिए उसको जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाते हैं, न्यूमरेटर कम्स टू द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कम्स टू न्यूमरेटर। सो अब ये 5 is what, 5/1, you can write 5 as 5/1, 2 as 2/1, so it will be 100 multiplied by 1/4 multiplied by 1/5 multiplied by 1/2, so it will be 5 2s are 10, 0, 4 5s are 20, so in numerator 5 1 1 1, 5/2. Okay, here you see in this one, now here comes the BODMAS rule, all signs are similar, division division division, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5, वी कैन राइट 4/5 डिवाइडेड बाई 2। छोटे बच्चों के लिए बता देते हैं, डिवीजन फॉर डिवीजन, एनीथिंग डिवाइडेड बाई एनीथिंग, सपोज 3 डिवाइडेड बाई 2, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज फ्रैक्शन 3/2. This and this both are same thing. 2 divided by 5 can be written as 2/5, where 2 is numerator and 5 is denominator. ये फ्रैक्शन चैप्टर लेटर ऑन कवर करेंगे, सो ये छोटे बच्चों के लिए बता दें कि ऐसा क्यों हो गया, उनको शायद समझ में ना आया जो अभी अभी 6th क्लास में गए हैं। देन हियर 100, now we can remove the bracket because there is no operation inside the bracket, so we can write 100 divided by 4/5 divided by 2. so just now we studied कि जब हम डिवीज़न करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और साइन मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 मल्टीप्लाइड बाई हियर 2/1, so we can write it as 1/4 5s are 20, so we can write here 125/2. so here we have got 5/2, here we got 125/2. now here in third case, see the bracket is here also, दो जगह में ब्रैकेट है, तो दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन क्लियर करेंगे, इसके अंदर का ऑपरेशन क्लियर करेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। अब इसके अंदर तो कुछ नहीं बचा, डिवाइडेड बाई 5/2 लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2। सो अब ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 4 multiplied by, so denominator will come to numerator and numerator will go to denominator, 2/5. so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 0, 2 10s are 20, so we have got 10 as the answer here. So in all the three places we have seen that we are getting different. Here we got 5/2, here we have got 125/2, and here we get 10. So in all the three cases, different answers are entirely different. Now of or orders, अभी हम इसको इससे रिलेटेड देखेंगे, ऑफ और ऑर्डर्स। ऑफ तो मालूम है, ऑफ इज ऑल्सो सिंपली मल्टीप्लिकेशन, बट इट्स गिवन प्रायोरिटी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
अब ऑर्डर्स क्या है? ऑर्डर्स क्या है? ऑर्डर्स मीन्स रूट्स, पावर्स, एक्सपोनेंट्स। रूट्स क्या है? सपोज रूट ऑफ 4, इट इज रूट अंडर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2। सो इसको रूट ऑफ 4 बोलते हैं। पावर्स क्या है? सिमिलरली 3 to the power 2, this is called power। 3 to the power 2, 3 multiplied by 3, that is 9। Exponents, what are base and exponents? Suppose 5 to the power 3, so this is exponent, this is referred to as base। तो याद रहेगा आपको, आप नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो जो भी मैं लिखा रहा हूँ यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस। नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को रीप्ले करके देख सकते हो, सो दैट कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। ऑफ्स में बहुत सारे बच्चे लोग बहुत जगह मिस्टेक करते हैं। सो आई विल डिस्कस हियर कॉमन मिस्टेक विथ ऑफ ऑपरेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2/15 ऑफ 5। इस क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, वीडियो पॉज करके। अगर आप कर सकते हो तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। Off is what? Off is basically multiplication only. We will multiply only in off, na? So one student can write like this 2/15। ऑफ को मल्टीप्लिकेशन ही है तो मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब ये डिवीज़न है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को अपोजिट उल्टा कर देते हैं। 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो व्हाट विल बी 2 2 ज़ा 4, then 15 2 ज़ा 30, 35 ज़ा 150। दिस इज वन आंसर फ्रॉम वन स्टूडेंट। अनदर स्टूडेंट क्या कर सकता है? अनदर स्टूडेंट को मालूम है कि ऑफ का ऑपरेशन पहले होता है, ऑफ 5। ऑफ इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, बट ऑफ का ऑपरेशन इज गिवन प्रायोरिटी in BODMAS according to BODMAS rule. After bracket off comes, then division, then multiplication, then addition, then subtraction. So here division will come after this operation because here off is there. तो इसको वो ब्रैकेट में डाल लेगा to avoid any confusion. अब 4 divided by 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. So inside bracket there is no operation left. क्या बच गया? 2/3. So अब ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 हो जाएगा। सो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट विल बी 3 2 जा 6। सो अभी कौन सा आंसर सही है? विच आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ ऑफ ऑपरेशन, ओके। सपोज इसके प्लेस में अगर इसके प्लेस में ये रहता 4 डिवाइडेड बाई 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 5 रहता,
यहाँ ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन रहता है। देन ऑल्सो हम क्या करते, सिंपली बॉडमास का रूल अप्लाई करते। बॉडमास में क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन है। पहले क्या करना है, डिवीजन करना है। तो यहाँ पर 4 डिवीजन पहले करेंगे, तो डिवीजन को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, 35 जा 150। तब ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो इस स्टूडेंट ने पहले किया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ ऑफ ऑपरेशन। We will take another example. 7 of 2 multiplied by 3. In this case, off and multiplication is there, so there is no issue, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऑफ भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं ऑफ में, बट इट इज़ गिवन प्रायोरिटी ओवर मल्टीप्लिकेशन। सो इसको हम इसको पहले करें या इसको पहले करें। सपोज हम इसको पहले करते हैं, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, 14 3 जा 42, या फिर 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 जा 6, 7 6 जा 42। इसमें दोनों सेम आंसर आया, बिकॉज ऑफ इज ऑल्सो in off also we are doing multiplication only, but when any other sign comes like division comes with off, then you have to be very careful. ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ मिस्टेक आप करते हो, कहाँ मिस्टेक हो सकता है। ठीक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत बार पूछा भी जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको बताइए। व्हाट इज हाफ ऑफ 20 प्लस 20? थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच के आंसर देकर, अगर कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें दो तरह के लोग आ जाते हैं, फिर से दो तरह के प्राणी आ जाते हैं। पहला जो प्राणी है वो बोलते हैं कि हाफ ऑफ 20 प्लस 20 मतलब 20 प्लस 20 इज 40, सो 40 का हाफ मीन्स 20, सो 20 इज द आंसर। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। अब कुछ इंटेलिजेंट लोग आते हैं इसमें, जिनको मालूम है ऑफ का ऑपरेशंस मालूम है। तो क्वेश्चन इज हाफ ऑफ 20 plus 20. So can't we write this as half of 20 plus 20? अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता तो आप क्या करते? बॉडमास क्या कहते हैं, पहले ऑफ करना चाहिए, पहले एडिशन करना चाहिए? ऑब्वियसली पहले ऑफ करना चाहिए, राइट? तो पहले ऑफ का ऑपरेशन करेंगे, हाफ multiplied by 20 plus 20. So we will do this off operation first. So it is 2 10 are 20. So here inside bracket all operations are completed. So 10 plus 20 is 30. So which one is right and which one is wrong according to you? What is your answer? This is correct and this is wrong, because here off means we have to consider it off. Off means we have to do off first, then we have to do addition. Thank you very much for watching the video. If you really find my video helpful और आपको इससे कुछ वैल्यू मिली है
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे और इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन्ड बिफोर यू। आई होप ऑल माय डियर चिल्ड्रन आर इन गुड हेल्थ। जब सारा साइंस रहता है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है या फिर डिफरेंट साइंस है, तो हम बॉडमास रूल तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंटी बॉडमास रूल भी आता है। एंटी बॉडमास रूल क्या कहता है? देयर इज़ वन रूल दैट इज़ एंटी बॉडमास रूल। आपको एक एग्जांपल देते हैं। 196 प्लस 639 माइनस 190। ये 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, बट आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है तो हम एज़ पर कन्वेनियंस कर सकते हैं, बट उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो साइंस को आपको ध्यान रखना है। साइंस जो भी आप सपोज एडिशन कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो रैंडमली, वो साइंस के साथ में जाएगा, या फिर आप लेफ़्ट टू राइट ऑपरेशंस कर सकते हो कीपिंग साइंस विद देम। ऐसा नहीं कि माइनस 190 के साथ में माइनस है तो उसको हम छोड़ देंगे, नहीं। जब भी ऑपरेशन करेंगे साइंस का साथ में करेंगे, या फिर एज पर कन्वेनियंस भी कर सकते हैं। अगर ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है किसी सिंप्लीफिकेशन में, तो आप उसको एज पर कन्वेनियंस कर सकते हो। अब कैसे? इसमें देखिए, अब इसको एक नॉर्मली अगर हम करेंगे तो पहले हमको क्या करना होगा? इस दोनों को ऐड करना होगा बॉडमास का रूल का हिसाब से। तो दोनों को ऐड करने से पहले इसको ऐड किए। 9 6 15 5 कैरी 1, 9 1 10 3 13, 3 कैरी 1, 6 1 7 1 8, 835 आया माइनस 190। 5 9 4 13, 7 में से 1 गया 6, 645 आंसर है। अब इतना ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर से ये करना इजी है। 196 माइनस 190 वो 6 आता है, तो हम इसको डायरेक्टली 639 प्लस 196 माइनस 190 प्लस 6, सो 639 प्लस 6 645। ये 2 सेकंड का आंसर है। बट अगर हमको ये नहीं मालूम है तो फिर हम इसी प्रोसीजर से करने से टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको कॉम्पिटिशन्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एग्जांपल आपको इसलिए बताया ताकि ये मैं समझा सकूं कि जो एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस है वो आप एज पर कन्वेनियंस कर सकते हो, लेकिन साइंस को साथ में रखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन को साथ में लेकर चलना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को साथ में लेकर चलना है। तो आप रैंडमली भी कर सकते हो एज पर योर कन्वेनियंस। इसका और एक एग्जांपल नेक्स्ट इसमें देखेंगे, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू सॉल्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और यूजिंग बॉडमास रूल। बॉडमास रूल के हिसाब से करने से ज़्यादा बेटर है, उसमें गलती होने का चांसेस कम है। बट जब आपको प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस कर लिए आप, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक्स। 7 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4। अब इसमें ओनली 2 टाइप्स का साइंस है, एक तो प्लस है और एक माइनस है। प्लस है माइनस है, सो ओनली 2 टाइप्स का साइंस है, प्लस एंड माइनस। अभी इसको कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको एज पर कन्वेनियंस कर रहे हैं और अगर साइंस को ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो क्या हो सकता है? जैसे मुझे दिख रहा है 3 प्लस 2 करना इजी है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया 2 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 2 कर दिया, 5 कर दिया, माइनस 4 कर दिया, फिर यहाँ पर 7 प्लस 2 9 माइनस 9, ये 0 आ गया। क्या ये सही है एज पर कन्वेनियंस? नो, इट्स रॉन्ग।
यहाँ गलती क्या किया हमने, व्हाट मिस्टेक वी हैव डन, मिस्टेक जो किया है हमने, ये जो साइन है इसका, ये साइन यहाँ पर हमने छोड़ दिया, ये 3+2 किया, -3+2 विल शुड हैव बीन -1 यहाँ पर। तो अगर हम इसको साइन को नज़रअंदाज करेंगे और एज पर कन्वेनियंस करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब इसी को देखो, हम एज पर कन्वेनियंस उसी प्रोसीजर से कर रहे हैं, लेकिन साइन को ध्यान में रख रहे हैं। 2 + 7, ये दोनों को हम पहले सॉल्व किए तो -3 + 2 -1 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा। 7 + 2 9, -5, -1 -4 is -5, 9 - 5 is 4। अब इसको तीसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड लेफ़्ट टू राइट चलना है, वो भी साइंस को देखते हुए, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। थर्ड मेथड 2 + 7 is 7 + 2 is 9, -3 + 2 -4, then here 9 - 3 is 6 + 2 -4, 6 + 2 is 8 -4 = 4। ये एंटी बॉडमास रूल इसलिए बोल रहे हैं इसको बिकॉज इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एक्चुअली एडिशन पहले करना चाहिए, सब्सट्रैक्शन बाद में करना चाहिए, बट हम जो सामने आ रहा है वो कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट साइन को देखते हुए। इसमें लेफ़्ट टू राइट साइंस को देखते हुए लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं, तो भी आंसर सही आ रहा है। क्यों? इसीलिए तो इसको एंटी बॉडमास रूल बोलते हैं। तो ये भी जानने का ज़रूरत है। अब इसको बॉडमास, जो फोर्थ मेथड जिससे आप कर सकते हो, चौथा तरीका जिससे आप कर सकते हो, वो है बॉडमास वाला। बॉडमास वाला रूल में क्या है, पहले पॉजिटिव वाला को लेंगे, पहले एडिशन करेंगे। तो एडिशन साइन के साथ कितना है, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब एडिशन साइन है। 2 + 7 9 + 2 11, -3 - 4 is -7, 11 - 7 is what, 4. So this is according to Bodmas rule. So we have performed same by 4 ways. So according to convenience you can do the simplification. Your idea should be, your concept should be clear. तब आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर सही आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी आप आइदर लेफ़्ट टू राइट फॉलो कर सकते हो या बॉडमास के थ्रू कर सकते हो, उसमें भी एंटी बॉडमास रूल लागू होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 × 2 / 3 × 4। ओके, सो 5 × 2 / 3 × 4, इसमें सिर्फ 2 साइंस है, एक तो डिवीज़न है और एक मल्टीप्लिकेशन है, 2 ही साइंस है ना। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 5 × 2 = 10, लेफ़्ट टू राइट हम चल रहे हैं। 10 / 3 × 4, फिर 10 को 3 से डिवाइड किए, 10 / 3 × 4, 10 / 3 × 4 is 40/3, 40/3। ये हम लेफ़्ट टू राइट प्रोसीजर फॉलो किए, लेफ़्ट टू राइट ऑपरेशंस only when multiplication and division is there. Another, using Bodmas rule, what we can do, first according to Bodmas, division we have to do division, then multiplication. So first division is 2 / 3, so we can write 2/3 multiplied by 4. So 5 × 2 = 10, 10 4 = 40, 40/3. So we get, at both places we got 40/3 और दोनों सही है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस ओनली 2 साइन रहता है। तो आप लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म कर सकते हो या फिर आप बॉडमास रूल फॉलो करके कर सकते हो, दोनों मैंने आपको दिखा दिया।
Now we will take a few examples with related to BODMAS rule. अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 20 माइनस 13 माइनस 7, एंड एक सिमिलर एग्जाम्पल है 20 माइनस 13 माइनस 7, दिस वन। अब आप वीडियो पॉज करो और दोनों फटाफट सॉल्व करो और कमेंट में लिखो इसका क्या आंसर होगा। 20 minus 13 minus 7. So what is this? This is vernaculum bracket or bar bracket. So bracket will be solved first according to BODMAS rule. So we will solve this first. So 20 minus 13 minus 7, 6. 20 minus 6 is 14. What will be here? यहाँ क्या होगा? 20 minus 13 minus 17, but this bar is from starting from here. So अब यहाँ से 20, 20 minus 13 minus 7 क्या हो जाएगा? minus 20 हो जाएगा। 13 plus 7 20 with minus sign, so minus sign will come and 30 plus 17 20, so it will be 0, cancel हो जाएगा, plus 20 minus 20, so it will be 0. So you have to be very careful with this bar bracket. 20 minus 5 divided by 5 plus 3 का स्क्वायर, 3 to the power 2. पॉज करके फटाफट सॉल्व कीजिए. What will be the answer? 20 minus, what we have to do first? BOD, orders. So we have orders, square comes under orders, powers comes under orders. So we will go as per BODMAS rule. So 3 to the power 2 is 3 multiplied by 3 is 9. Okay. Now plus division and subtraction. What we have to do first? We have to do division first. So 20 minus 5 divided by 5 is 1. We can write here 1 plus 9. Now according to BODMAS rule, first we have to solve addition, then subtraction. 20 plus 9, 29 minus 1, that is 28. Or if we follow here from here, if we follow 20 minus 1 plus 9, so we only two signs are left now, positive and negative. So लेफ़्ट टू राइट वाला जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं, जो कि एंटी बॉडमस रूल एक तरह से है. तो ये क्या हो जाएगा, पहले सब्सट्रैक्शन कर लिए तो 20 माइनस 1 इज़ 19 प्लस 9, दिस इज़ ऑल्सो 28. तो इसमें लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच नोबडी टॉक्स अबाउट. सिंपल सा चीज़ है, साइन रूल. इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, या फिर ये जो बचपन से ये कन्फ्यूज़न बना रहता है बच्चों में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कन्फ्यूज़न और डेवलप ही होता जाता है, ये सॉर्ट आउट नहीं होता है. इसलिए मैंने इसको एक बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो साइंस को कैसे रखना और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना. बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, बट ये बात कोई बताता नहीं है. देखने में बहुत छोटा बात है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है.
एडिशन ऑफ साइंस। मैं आपको विथ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ। एनी नंबर विथ प्लस साइन व्हेन एडेड टू एनी नंबर विथ प्लस साइन, कोई ऐसा नंबर जिसका प्लस साइन है और दूसरा भी नंबर प्लस साइन है और उसको ऐड कर रहे हैं, तो हम करते हैं एडिशन और साथ में प्लस साइन आता है। एनी नंबर विथ प्लस साइन and we are adding to any number with minus sign, we have to subtract and bigger number sign will come, बड़े नंबर का साइन आएगा। any number with minus sign, when we are adding with any number with plus sign, we again have to subtract और bigger number का साइन आएगा। any number with minus sign, when added to any number with minus sign, we have to do addition and minus sign will come. तो इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज 5 plus 2 will be what? We are adding two numbers with prefix as nothing is there means positive sign is there, nothing is there means positive sign is there, and we are adding. So जब पॉजिटिव साइन का नंबर पॉजिटिव साइन का नंबर के साथ ऐड होता है तो हमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो 5 और 2 कितना होगा? 7। और कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। प्लस साइन, सिंपली वी कैन राइट इट 7। नेक्स्ट, +5 प्लस -2। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, 5 है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है और इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस साइन का नंबर को माइनस साइन का नंबर के साथ एडिशन करने से क्या करना है? दोनों नंबर में सब्सट्रैक्शन करना है। क्या लिखा है मैंने? सब्सट्रैक्ट करना है। मीन्स 5 में से 2 जाने से कितना बचेगा? 3। और बड़ा नंबर का साथ में जो साइन है वो साइन आएगा। तो 5 और 2 में बड़ा कौन सा है? 5 है। तो इसके साथ साइन क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। सो यू कैन सिंपली राइट एज 3। नेक्स्ट, सेम -5 प्लस 2, माइनस साइन प्लस 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एनी नंबर विथ नेगेटिव साइन, अगर हम उसको पॉजिटिव साइन ऐड करते हैं, पॉजिटिव साइन इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन वाले नंबर को पॉजिटिव साइन वाले नंबर के साथ एडिशन करते हैं तो क्या करना होता है? सब्सट्रैक्शन करना होता है। सब्सट्रैक्शन 5 - 2 इज 3 एंड बिगर नंबर साइन विल कम। बड़ा नंबर का साइन आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है? 5। 5 के साथ क्या साइन है? माइनस। सो -3, सो इट विल बी -3। नाउ अगेन -5 प्लस -2। अब यहाँ देखो, ये क्या है? -5, ये नेगेटिव साइन के साथ नंबर है। व्हेन एनी नंबर विथ नेगेटिव साइन गेट्स एडेड विथ एनी नंबर विथ नेगेटिव साइन, 2 भी नेगेटिव साइन के साथ है, वी हैव टू डू एडिशन। मीन्स 5 और 2 को ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा एंड नेगेटिव साइन विल कम, नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आया? ये बहुत सिंपल चीज़ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस, जब आप बच्चे स्पेशली जो क्लास 6th में एंटर किए हैं या 7th में हैं, ये साइंस का कन्फ्यूज़न उनको बहुत होता है। तो अगर आप एक बार समझ गए इसको कैसे हो रहा है, उसी को बताने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है।
बहुत सारे बच्चों को जो ऑलरेडी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत सिंपल लगता होगा, बट ये बताना ज़रूरी है सो टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। तो अगर इसको सीखने के बाद में आपका साइंस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंस, साइंस का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? व्हेन एनी नंबर विथ पॉजिटिव साइन gets subtracted to any number with positive sign, the result will be we have to do subtraction and bigger number sign will come. ध्यान में रहेगा। दूसरा, when any number with positive sign gets subtracted to any number with negative sign, we have to do addition. We have to add and positive sign will come. Okay? When any number with negative sign gets subtracted to any number with positive sign, we have to do addition and negative sign will come. You are getting me? Any number with negative sign gets subtracted with any number with negative sign, we have to do subtraction and bigger number sign will come. Bigger number sign will come. So I'll give you example one by one so that you can understand. 7 minus 2. 7 minus 2. Here देर इज़ नो साइन, इसके पीछे कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है? प्लस का साइन है। इसके पीछे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब पॉजिटिव साइन वाले नंबर को पॉजिटिव साइन वाले नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमको क्या करना होता है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स 7 minus 2 विल बी 5 और बड़े वाले नंबर का साइन इसके साथ आएगा, दैट इज़ प्लस। बड़े वाले नंबर के साथ क्या है? प्लस। तो यहाँ प्लस आएगा, तो इसको हम सिंपली 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, +7 माइनस 2। अब यहाँ पर +7 इसके साथ प्लस का साइन है इस नंबर के साथ, और इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। तो जब पॉजिटिव साइन वाला नंबर को नेगेटिव साइन वाला नंबर से सब्सट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, तो रिज़ल्ट क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। तो 7 और 2 कितना होगा? 9 एंड कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा, मतलब यहाँ प्लस साइन आएगा, यह 9 हो जाएगा। -7 when subtracted with +2। यहाँ पर क्या है? ये सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसके साथ में? नेगेटिव साइन वाले नंबर को पॉजिटिव साइन वाले नंबर के साथ में। तो जब नेगेटिव साइन वाला नंबर और पॉजिटिव साइन वाले नंबर के बीच में सब्सट्रैक्शन होता है तो हमको क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। मीन्स 7 + 2 विल बी 9 एंड नेगेटिव साइन विल कम, मतलब यहाँ पर -9 होगा। -7 सब्सट्रैक्टेड टू -2। यहाँ पर क्या देखिए? यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ एक नंबर है और दूसरा नंबर भी नेगेटिव साइन के साथ में है, और उसको हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव साइन वाला नंबर नेगेटिव साइन वाला नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन करते हैं तो फाइनली हमको क्या करना होता है? सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो 7 - 2 क्या होता है? 5। और इसके साथ कौन सा साइन आएगा? बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो आएगा। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 7। 7 में क्या साइन है? माइनस। सो -5 विल कम। अब ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बट इतना समझाने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए हाउ दिस थिंग्स आर गेटिंग
done, how these things are going. तो आपका इस लेवल में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको बाद में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा साइंस से रिलेटेड। हमेशा आप कोई भी नंबर को साइंस के साथ में कंसिडर करोगे। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, साइंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या साइन आता है? व्हेन प्लस इज मल्टीप्लाइड विथ plus any number with plus sign is multiplied with any number with plus sign, we will get plus sign. Okay, when any number with plus sign gets multiplied with any number with minus sign, we will get minus sign. When any number with minus sign multiplied with any number with plus sign, we will get minus sign. कोई भी नंबर नेगेटिव साइन के साथ में है और उसको अगर हम नेगेटिव साइन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्लस साइन मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसका एक एक छोटा छोटा एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू। इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हाट इट इज सेइंग, व्हेन पॉजिटिव साइन गेट्स मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव साइन, यहाँ कुछ नहीं है मीन्स यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसके पीछे कुछ नहीं है मीन्स पॉजिटिव साइन है। व्हेन पॉजिटिव 5 इज मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव 3, 5 3 is 15, we have to do multiplication and positive sign will come, positive sign will come, or we can simply write 15. पॉजिटिव साइन इसके पीछे कुछ नहीं है मीन्स पॉजिटिव साइन। व्हेन पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय नंबर विथ नेगेटिव साइन -3, we will get 5 3 is 15 and negative sign will come. ठीक है, here नेगेटिव साइन नंबर -5 is with नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन नंबर मीन्स 3 के पीछे कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है। 5 3 is 15, साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन नंबर -5 multiplied with negative sign number -3, both are negative sign number, so when negative gets multiplied with negative it becomes positive, so 5 3 is 15 and plus sign will come with the number, so you can write it as 15. So I hope आपको पूरा BODMAS रूल समझ में आया होगा और मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में आपने किसी YouTube वीडियो में देखा होगा, सो दैट कि आपका पूरा BODMAS का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। छोटा वीडियो भी बना सकते थे लेकिन छोटा वीडियो में प्रॉब्लम यह है कि आपको पूरा जो इसका संपूर्ण निचोड़ है, पूरा सारांश इसका हम नहीं बता सकते छोटा वीडियो में। आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। अगर अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इन बिटवीन आपको बीच में कुछ डाउट्स आता है वीडियो के टाइम में, तो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा सभी का रिप्लाई करने के लिए। अभी हम एक एक करके एक टिपिकल एग्जांपल्स को देखेंगे और टिपिकल एग्जांपल्स में सारा जो BODMAS का कन्फ्यूजन्स है वो भी क्लियर आपको होता जाएगा। सो वन बाय वन करके हम एग्जांपल्स देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन, सो दैट कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि BODMAS का रूल कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती हो सकता है और उसको कैसे उस गलतियों से बचना है। ये सारा चीज़ आपको अभी आप जो एग्जांपल्स मैं दूंगा एक एक करके बहुत छानबीन करके ये एग्जांपल्स निकाला है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी एग्जांपल है, इसके पीछे बहुत मेहनत करके ये सारे एक एक एग्जांपल्स लेकर आया हूँ आपके पास। सो अभी विल स्टार्ट विथ माय फर्स्ट एग्जांपल। 5 6 plus 3y divided by 7 minus 4x minus 2y divided by 7.
वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5x, नीचे तो 7 है डिनोमिनेटर, तो नीचे 7 ले लिया डिनोमिनेटर कॉमन, एंड 5x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 2y ऐसा ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर 5x और 4x, 5x माइनस 4x इज़ x, 3y माइनस 2y इज़ y बाई 7, ऐसा उनका आंसर आ गया। बट यहाँ गलती क्या है, इज़ दिस द करेक्ट आंसर? क्या ये सही है? आप लोगों का भी यही आया आंसर? इफ़ नॉट देन आपको समझ में आता है, इफ़ यस देन यू आर रॉन्ग। हम डिनोमिनेटर कॉमन है 7 7, सो वी कैन टेक डिनोमिनेटर एज कॉमन, बट हियर 5x प्लस 3y minus, we will take two numbers in bracket and with sign. तो यहाँ पर माइनस 4x माइनस 2y, बिकॉज ये डिफरेंट फ्रैक्शन है, ये डिफरेंट फ्रैक्शन है, तो जो ये माइनस का साइन आ रहा है ये पूरे के साथ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या गलती किए हो, ओनली माइनस का साइन इसके साथ में दे दिए, बट इसके साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो आपने नहीं किया, तो यहाँ पर ओनली माइनस 2y आपने नीचे लिख दिया। सो हियर वी हैव टू पुट माइनस एज कॉमन एंड इन ब्रैकेट 4x माइनस 2y, दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर। अब यहाँ पर क्या होगा, 5x प्लस 3y, नाउ माइनस इंटू प्लस 4x विल बी माइनस 4x, minus minus multiplied, when minus is multiplied with minus it will give plus sign 2y, इसीलिए आपको पहले साइंस बता दिया, डिवाइडेड बाई 7। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल विल बी x, हियर 3y प्लस 2y विल बी 5y डिवाइडेड बाई 7, so this will be the right answer. Now we will take another example. 25 divided by 5 minus 2 multiplied by 2 plus 10. जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करके देखो क्या तुम सॉल्व कर पाते हो, एंड उसके बाद आंसर चेक करो कि क्या तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। तो इस तरह से यू विल बी एंथुजियास्टिक। 25 we can write 25 divided by 5, any fraction, suppose already बताया था 5 divided by 2 can be written as 5 by 2 also, it's the same thing, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। 3 divided by 3 can be written as 3 by 3, 3 1 जा 3, it is 1, so 25 divided by 5, numerator is 25 and denominator is 5, minus 2 multiplied by 2 plus 10. Now according to BODMAS rule what we have to do, पहले क्या करना है, पहले डिवीज़न करना है, इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। तो 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 ज़ा 25 मीन्स 5 माइनस, देन डिवीज़न के बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, 4, और एक नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं सो दैट कि आपको क्लियर होगा। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10, अभी नेक्स्ट डिवीज़न हो गया, नेक्स्ट वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन। सो 5 माइनस 2 multiplied by 2 is 4 plus 10. Now after multiplication क्या करेंगे, एडिशन, BODMAS मल्टीप्लिकेशन एडिशन। सो हियर कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ क्या है, प्लस साइन है, हमेशा प्लस साइन वाला को एक साथ में ऐड कर लो, 10 और 5 15, तो ये 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 11, 11 will be the answer. Another example,
जब आप बेसिक समझ गए हो तो ये सब चीज़ बहुत आसान लगने लगेगा। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किल लगेगा। अनदर एग्जाम्पल, 8 divided by 3 plus 4 multiplied by 5. you can pause the video and do it by yourself. देखो, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले क्या आता है, ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट इंडिविजुअली वन साइड है, ये ब्रैकेट इंडिविजुअली वन साइड है। सो 18 डिवाइडेड बाई 3 वी कैन राइट इट एज 18/3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इज व्हाट, 4 5 जा 20. So what will be the answer? 18 प्लस 60/3. अब ये 60/3 कैसे आया? बिकॉज यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को हमने कॉमन किया, तो इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसको डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो डिनोमिनेटर सेम होगा ना। ये फ्रैक्शन चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। सो 78/3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 26 is the right answer. We will take another example. 16 divided by root 4 plus 3 to the power 2. You can pause the video and try to solve it. So यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट तो नहीं है, देन ऑफ है और ऑर्डर्स। सो ऑर्डर्स में रूट स्क्वायर्स आता है, तो पहले ऑर्डर्स को शॉर्ट आउट करेंगे। 16 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. ओके, सो व्हाट विल बी द next step? 16 divided by root of 2 multiplied by 2 is 2 plus 3 multiplied by 3 is 9. now अभी यहाँ क्या क्या साइन है, डिवीज़न है और एडिशन है। तो जब डिवीज़न एडिशन है तो पहले क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9, 2 8 जा 16 मीन्स 8 प्लस 9 will be 17. 17 will be the right answer. We will take another example. 10 square 10 to the power 2 divided by 5 multiplied by 2 minus 5. पॉज द वीडियो और सॉल्व करने का कोशिश करो पॉज करके। इसमें क्या है, पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 multiplied by 2 is 5 2 जा 10 minus 5. ओके, नाउ हियर अब डिवीज़न है, सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पर ऑर्डर्स भी है। ऑर्डर्स में क्या क्या आता है, रूट्स, एक्सपोनेंट्स, पावर्स। ओके, तो यहाँ पर पावर है 10 to the power 2, पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 10 to the power 2 is 100 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। अभी हमारे पास क्या साइंस है, डिवीज़न है, सब्सट्रैक्शन है, तो फर्स्ट वी विल डू डिवीज़न देन सब्सट्रैक्शन। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, सो दिस विल बी 10 10 10 जा 100, 10 माइनस 5, 5 विल बी द राइट आंसर. Let's take another example. 10 plus root under 16 multiplied by 10 minus 8 to the power 2. बच्चों आप वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर बना सकते हो पहले। See how to solve this one. पहले क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रैकेट को। तो क्या है, 7 प्लस रूट 16 मल्टीप्लाइड बाई, in bracket what it is, 10 minus 8. 10 minus 8 is what, 2, and here square will come to the power 2. Now
ऑर्डर्स पावर है, रूट है, पहले उसको सॉर्ट आउट करेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे. रूट अंडर 16 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 2 इज 4. ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है. 4 4 जा 16, 23 इज द राइट आंसर. Let's take another example. 5 multiplied by big bracket, then small bracket 3 plus 2 to the power 2 minus 8 divided by 4 in bracket, then big bracket close. Pause the video and try to solve. How to do this? 5 multiplied by, पहले क्या है, पहले ब्रैकेट वाला सॉर्ट आउट करेंगे. बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो पहले छोटा ब्रैकेट वाला को इंडिविजुअली सॉर्ट आउट करेंगे. So 3 plus 2 is what? 5 to the power 2 minus 8 divided by 4 is 8 divided by 4 is 4 2s are 8, means you can write directly here 2 and big bracket close. Again 5 multiplied by inside bracket. जब तक ब्रैकेट के अंदर का पूरा ऑपरेशंस क्लियर नहीं हो जाता तब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करते, ब्रैकेट को वैसे ही रखते हैं. तो अब यहाँ पर ब्रैकेट का अंदर में 5 स्क्वायर माइनस 2, तो ये ऑर्डर्स है और ये सब्सट्रैक्शन है, तो पहले ऑर्डर्स वाला करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 2 इज व्हाट 23. Now we have to multiply this one. 5 3 is 15, carry 1, 5 2 is 10, 1 11. 115 is the right answer. Let's take another example. 15 minus big bracket 8 minus curly bracket 9 minus 8 minus small bracket 10 minus 7 vernacular bracket, all brackets close. Moving with this example, अभी इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर करली ब्रैकेट है, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, उसके अंदर बार ब्रैकेट है, या फिर इसको वर्नाकुलम ब्रैकेट भी बोलते हैं. तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे. 15 माइनस 8 माइनस 9 minus 8 minus 10 minus 7 is what? 10 minus 7 is 3. Then bracket close, all brackets close. इसके बाद प्रायोरिटी देंगे छोटा ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 15 minus 8 minus 9 minus 8 minus 3 is 5. Curly bracket close, this one close. Okay. After this, priority will be given to curly bracket. 15 minus 8 minus 9 minus 5 is 4. Then 15 minus, इसके अंदर में ब्रैकेट में क्या रह गया 8 minus 4 is 4. 15 minus 4 is 11. So 11 will be the right answer. ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर का पूरा सॉल्व होने के बाद में ही ब्रैकेट को ओपन करना है. Let's take another example. 8 plus 8 of 8 divided by 8 minus 34 divided by 5. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपका डाउट्स क्लियर होने वाला है. सो आपको पॉज करके वीडियो यू कैन ट्राई इट आउट. अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑफ है, ब्रैकेट नहीं है, नेक्स्ट ऑफ है, तो हमको पहले ऑफ को कंसिडर करना है. दिस वन, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स क्या करेंगे, इसको पहले कर देंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है. ये ऑफ है ना, प्रायोरिटी किसको देना है, ऑफ को. देन 8 plus 8 of 8. What does off means? Off is नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन.
but it is given priority, so we have to multiply here 8 multiplied by 8, 8 8 is 64, then divided by 8 minus 34 by 5 is equal to, next is addition, division, subtraction. So we will do division because division is on priority. 8 plus 64 divided by 8 is what? 8 8 is 64, 8 minus 34 by 5. Now here 8 plus 8 is 16 minus 34 by 5. Now here denominator is 5, so in order to make here 5, we have to take, here denominator is 1, if we multiply it by 5, so denominator we have to multiply numerator by 5. So what we will get here, नीचे में 16 5 is 80 by 5 minus 34 by 5. So we can take 5 as common, 80 minus 34. What will be the answer? 80 minus 34, 646 by 5 will be the right answer. So वन बाय वन क्लियरली स्टेप्स को फॉलो करने से कभी भी आंसर्स में मिस्टेक्स नहीं होंगे. We will take another example. 3 by 4 of 116 minus 2 by 3 of 87. Pause the video and try to solve it. सारा एग्जाम्पल्स मैंने चुन चुन कर लिया है सो दैट कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए. उसी तरह का एग्जाम्पल सेलेक्ट कर करके लिया हूँ. ये क्या है? ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है. सो ऑफ का ऑपरेशंस पहले करना है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, ऑफ का ऑपरेशंस पहले करेंगे. सो यहाँ पर दिस इज सेपरेट, सेपरेटली वी कैन डू दिस, वी कैन डू सेपरेटली बिकॉज यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है. दोनों का ऑपरेशन, ऑफ मीन्स क्या है? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन. ओके, माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 87. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, then 9 3 जा 27, 2 carry, 3 2 जा 6, 7 8, 87 minus 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, then 29 multiplied by 2 is 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4, 1 5, 58. 29 will be the right answer. जब भी ऑफ का ऑपरेशंस है उसको सेपरेटली पहले करना है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन करना है. ऑफ से कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट एग्जांपल, 64 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, from here only bracket is there, plus curly bracket 3 to the power 3 minus 12 divided by 4, 12 divided by 4, bracket close, curly bracket close, big bracket close. ओके, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई टू सॉल्व. देखो इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना. तो सब बाहर में बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर में करली ब्रैकेट है, उसके अंदर में छोटा ब्रैकेट है. तो पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना. सो 64 डिवाइडेड बाय 4 प्लस
3 to the power 3 minus 12 divided by 4, 4 3s are 12, 3. So now inside this bracket is only 3, so we can remove the bracket, then curly bracket, then big bracket. Then 64 divided by 4 plus, now 3 inside bracket minus is there, orders is there, तो orders पहले करेंगे फिर minus करेंगे. Okay, so orders 3 3s are 9, 9 3s are 27, 3 to the power 3 is 27 minus 3, 27 minus 3 is what? 24. So 27 minus 3 is 24. तो इसके अंदर का ऑपरेशन खत्म हो गया. अब 24 को हम बाहर लेकर आ गए. अब ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर में क्या बच गया? डिवीज़न एंड एडिशन. पहले क्या करेंगे? डिवीज़न करेंगे फिर एडिशन करेंगे. 64 डिवाइडेड बाई 4, 64 बाई 4 प्लस 24. सो इट क्या ये पूरा डिवाइजिबल हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 प्लस 24, 6 4 10, 0 कैरी 1, 3 1 4, 40. 40 विल बी द राइट आंसर. सो इस तरह से हम BODMAS को यहीं पर क्लोज करेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Bracket 5 plus 5 multiplied by 5 plus 5 divided by 5, bracket small bracket close, then big bracket close, plus 5 divided by 5. Pause the video and try to solve it and give your answers in the comments. Now इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है हमारे पास, तो ब्रैकेट के अंदर का सारा ऑपरेशंस को सफाचट कर देंगे. क्या करेंगे? जैसे खाना मम्मी बोलती है ना, खाना खा लो, पूरा खाना सफाचट करने के लिए बोलती है, वैसे हम ब्रैकेट के अंदर का पूरा ऑपरेशंस को सफाचट कर देंगे. तो बड़ा ब्रैकेट का अंदर में पहले छोटा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे. 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई, छोटा ब्रैकेट के अंदर में क्या है? डिवीज़न है एंड एडिशन है, तो पहले डिवीज़न करेंगे. 5 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 1 एंड 5 प्लस 1 विल बी 6. सो टोटल इट विल कम 6. पूरा ब्रैकेट का ख़त्म हो गया. कंफ्यूज नहीं होना. 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1, 5 प्लस 1 इज़ 6. सो इस ब्रैकेट से हमको क्या मिला? 6 मिला. यहाँ पर हम इसको क्लोज किए. प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर अभी इस ब्रैकेट के अंदर में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है एंड एडिशन है. पहले क्या बोलता है BODMAS? मल्टीप्लिकेशन करो, तो मल्टीप्लिकेशन करो. देन क्या है? 5 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5. अब 30 प्लस 5 क्या है? 35. ना अब ये ब्रैकेट हट जाएगा. प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स पहले हमको डिवीज़न ही करना पड़ेगा. यहाँ पर प्लस का साइन है एंड डिवीज़न का साइन है, तो पहले डिवीज़न करना है फिर एडिशन करना है. तो क्या हो जाएगा? 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1. सो 36 विल बी द राइट आंसर. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 42 divided by 10 minus 7 by 4 multiplied by 1 by 3. ये फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल है. of 6 by 5 plus 16 by 3 multiplied by 9 by 10 minus again in bracket 1 by 6 divided by 1 by 36. 1 by 6 divided by 1 by 36. चलो फटाफट वीडियो पॉज करो एंड अपना आंसर्स कमेंट में डालो. ओके. यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ऑफ है. पहले क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे.
तो ये इंडिविजुअल सेपरेट ब्रैकेट है, ये इंडिविजुअल सेपरेट ब्रैकेट है, दोनों को एक साथ सॉर्ट आउट करेंगे. 42 divided by 10 minus 7, we can write it this bracket 7 by 4 3 is 12. इस ब्रैकेट से हमको क्या मिला? 7 1 7, 4 3 is 12 of 6 by 5 plus 16 by 3 multiplied by 9 by 10 minus, इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए जो प्रोसीजर है बॉडमास का कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इसलिए हम इसको प्रॉपरली स्टेप्स में लेकर जा रहे हैं, सो दैट कि आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग हो वो थोड़ा बेटर हो जाए. बाद वैसे तो आप इसको पहले कर सकते हो, इसको ये कर सकते हो, ब्रैकेट को साथ में लेकर चल सकते हो, लेकिन जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो छोटे बच्चे भी हैं उनको भी समझ में आए. बड़े बच्चों को तो हो सकता है समझ में आ जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए एक एक स्टेप्स बताना ज़रूरी है. सो वी कैन राइट इनसाइड हियर व्हाट विल 1/6 डिवाइडेड बाई, इट विल गेट मल्टीप्लाइड 1/36/1. जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपोजिट में चला जाता है. ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया. ये क्या हो जाएगा? 6 6 ज़ा 36. तो इस ब्रैकेट से मेरे को क्या मिला? 6. ओके, सो हियर 6 विल कम. देन अब यहाँ पर क्या क्या हमारे पास साइंस है? डिवीज़न है, सब्सट्रैक्शन है, ऑफ है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, देन सब्सट्रैक्शन है. हमको प्रायोरिटी किसको देना है? पहले ऑफ को देना है. पहले ऑफ को हम सेपरेटली कर लेंगे, ठीक है. 42 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 by 12 multiplied by off is what? Basically multiplication. 6 by 5 plus 16 by 3 multiplied by 9 by 10 minus 6. 6 1 is 6, 6 2 is 12. Means 7 by 5 2 is 10. What we get? 42. Division ko we can write 42 by 10. We can write here this one as 42 by 10. It's the same thing. Minus 7 by 10 we can write here 7 by 10 plus. Now this is clear. So next we can do division and we can do multiplication. So division we have written here, multiplication also we can write same time. We can multiply here 3 3 is 9, then 16 3 is 48 divided by 10 minus here 6. So all are with 10. सो इसको भी अगर प्लस माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा. ये आपको फ्रैक्शंस में पता चलेगा, फ्रैक्शंस में आपको डिटेल में बताऊंगा. तो यहाँ पर 6 को अगर डिनोमिनेटर 10 चाहिए तो क्या करना होगा? 6 इज़ व्हाट? 6 इज़ 6/1. 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1. अगर इसका डिनोमिनेटर 10 चाहिए तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर हम डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को छोड़ देंगे क्या? नहीं ना, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये क्या मिलेगा? 60/10. सो वी कैन राइट हियर 60/10 फॉर दिस वन. कंफ्यूज नहीं होना. इसके बदले में ये आया, यहाँ से ये आया. कैसे आया वो ये मैंने यहाँ से बताया, ठीक है. अब सारे का डिनोमिनेटर 10 है तो वी कैन टेक डिनोमिनेटर कॉमन एज 10. यहाँ पर 42 माइनस 7 प्लस 48 माइनस 60. अभी सेपरेट कर लेंगे. पॉजिटिव साइन वाला को एक साथ में 42 प्लस 48, 8 2 10, 0 कैरी 1, 4 1 5 4 9 90. नेगेटिव साइन वाला को एक साथ में 67 बाई 10. मतलब क्या हो जाएगा? 23/10 विल बी द राइट आंसर. ठीक है, कैसे कैसे आया समझ में आया? बच्चे छोटे क्लास के जो बच्चे हैं 6 7 8 के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से इनको 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा.
Next example, this is the last example we are taking. 30 plus curly bracket 2 to the power 3 multiplied by 5 minus 3 curly bracket close, then bracket close, big bracket close, minus 8. वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो। अभी यहाँ पर क्या है, हमको बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये सारा एंटिटी है, तो पहले ब्रैकेट पोर्शन का सारा ऑपरेशंस क्लियर करना पड़ेगा। तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर में करली ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, तो पहले छोटा ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। 30 प्लस 2 to the power 3 multiplied by 5 minus 3 is 2. देन इसके हमको 2 मिला, ये ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस 8 30 प्लस, अब इसके अंदर क्या ऑपरेशंस है, पहले ऑफ है, ऑफ मीन्स ऑर्डर्स, एक्सपोनेंट्स, रूट्स, तो यहाँ पर पावर में है 2 to the power 3 is 2 into 2 into 2 is 8, 8 multiplied by 2, so we can write 8 to the 16, directly we can write here 16. इस ब्रैकेट से हमको 16 मिला, माइनस 8, सो 30 प्लस 16 इज 46 माइनस 8. What will be the answer? 38 will be the right answer. आई होप बॉडमास मैंने बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। इसमें फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, कहीं पर कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं सबका कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई कर पाऊँ, और जब हम कभी लाइव सेशन करेंगे उस टाइम में भी आप पूछ सकते हो। फ़िलहाल बॉडमास को पूरा डिटेल में मैंने एक एक पोर्शंस को, एक एक निचोड़ को, नहीं तो ये जो साइन रूल मैंने बताया या फिर बाकी चीज़ें बताई, बहुत सारे वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पूरा जो बॉडमास को पूरा क्लियर करने के लिए इतना बड़ा वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए आपका पूरा बॉडमास से रिलेटेड जो सिंप्लीफिकेशन, जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं, वो लाइफ में आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सो दैट कि उनका भी जो इससे टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट्स है, वो सारा डाउट्स क्लियर हो सके। इफ़ यू रियली फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल एंड इफ़ यू गॉट एनी वैल्यू, अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्लेन्ड बिफोर यू। कितना अच्छा नाम दिया है आपके चैनल का, एक्सप्लेन्ड बिफोर यू, मीन्स आपके समक्ष सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, दैट इज़ द नेम इट सेल्फ सजेस्ट। सो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can never miss my video. Thank you very much. Bye bye.